So hello everyone, this is Pankaj. I welcome you all again on this platform. So today our guest is Isa Nisar. So first of all, Hi. I welcome you here. Hi. Okay. So Miss Isa is passed out from IIM Ahmedabad in the batch of I think 20 to 22, right? Yes. Okay. So first of all, again I want to congratulate you on your IIM Ahmedabad journey. Thank you. ओके तो मैं आपको बता दूं ईसा कि व्हाट इज द मोटो ऑफ दिस वीडियो एक्चुअली द मोटो ऑफ दिस वीडियो इज टू प्रोवाइड द गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स हु दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईएम अहमदाबाद बैंगलोर कोलकाता also okay so basically we will focus on the interview part. What was your interview, how was your interview? Okay, so we'll start this Yes. session. So we want your introduction first, please. Okay. Mm. So I'll give you a brief introduction. I'm Isha Nisar. Mhm. I'm born and brought up in Mumbai. I've Mhm. done my undergraduation in BMS from Narsi Munji College. Mhm. And after that, I have briefly 1 year experience in an outdoor media company called Symbiosis Advertising. Okay. After which I joined IIM Ahmedabad Mm. in their PGP program 2020 2022 Mm. in the COVID batch. Mm. I got an in summer internship with Unilever where I had to create an ad for Surf Excel. Okay. And currently, I have joined ITC as an assistant manager under training. Okay. So, yeah, That's all. so Mm. currently I'm in Delhi Mhm. and the experience is good. Yeah. So it's a great, Isa. So let's start our main things right now. Okay. So my first question is that when did you dream for IIM Ahmedabad, and what thing motivate you for this? Obviously, this is obvious. Everyone will dream for this. Please. So my story is a little Mm. different and Mm. maybe थोड़ा funny भी हो सकता है. Please. I was in 11th standard Mm-hmm. and that time the movie came two states. I Uh, was forced to go and watch that movie because it was my best friend's birthday when the uh, movie was being released. okay. तो वो मुझे जबरदस्ती लेकर गई Mm. and I saw the entire like Mm. my focus was on the first 20 minutes of how the thing is. Mm. I was first introduced to IIM Ahmedabad Mm. through that movie. Before that, मुझे Mm. इतना नहीं पता था IIM Ahmedabad and all of these things. Okay. Then I started researching about it and I was like, Mm. अरे यही तो करना था मुझे जिंदगी में. Right. So Okay. this was the plan that I had already, but I Mm. just did not know कि Mm. this is the path route. Mm. So I started preparing for it. I had a lot of dream. I started building my Mm. profile. Not Mm. that I was aware कि हमें profile वगैरह कुछ बनाना होता है, but Mm. I started doing things that I really liked in my college because I was going out of my house for the first time. Oh. And it was like, you were seeing all cultural activities going on, organizing extracurricular activities. So I started all doing all of these things, which did help me out later on. Mm-hmm. But those were very unplanned. But my dream for IIM Ahmedabad started in my 11th standard. I was a From very movie. small kid. I was very Right. excited Yeah. Hmm. from So that you movie. that time only you find any difficulty, like it is a difficult task or सब लोगों से नहीं हो पाएगा, इस ऐसा कुछ थॉट था आपके मन में that time? तो था तो सही. Hmm. It was also back then Hmm. dominated by engineers. 95% engineers and Hmm. 5% only people Hmm. were girls who Hmm. were or also maybe from a commerce or an arts background. Hmm. I was told this repeatedly कि आपको IIM अहमदाबाद तो जाना है, बट Hmm. पता है ना IIM अहमदाबाद में सिर्फ इंजीनियर्स आते हैं और आप बहुत लेट हो गए कि अब आप इंजीनियरिंग जा नहीं सकते हो. Hmm. Hmm. And I had a lot of things which was going on. Hmm. In my first year, Hmm. my senior, who was Hmm. in third year, Hmm. got an admission into IIM Ahmedabad. Oh. And we had almost a similar profile. I was like, इसको हो सकता है ना, मतलब मुझे भी हो सकता है. So there is nothing that can stop me. Yeah. Yeah. Okay. Hmm. And when I came into IIM Ahmedabad, I really see how different people, how diverse profiles they have, and Uh, that is why they are in IIM Ahmedabad. right. You are the leaders. Yeah. This is what the entire Uh, portfolio is. okay. Exactly. And I just as if your journey is has been little long. Huh? So I already talked to you for this. So how did you handle this phase? So I had taken 3 attempts Hmm. precisely. Mm-hmm. The first attempt was I Hmm. was just playing around. एक Hmm. दिन की preparation में चली गई थी. I thought it was an aptitude test. Uh-huh. I was in my third year. Uh-huh. Okay. तो इतना ज्यादा focus नहीं किया था कि Hmm. Hmm. um,
लाइक आई हैव टू स्टडी। आई थॉट एप्टीट्यूड टेस्ट है, मैं तो क्लियर कर ही लूंगी, मेरे तो हम्म, एप्टीट्यूड हम्म, बहुत ही अच्छा है। हम्म, बट नहीं हो पाया। ओके, ओके, देन फॉर द सेकेंड टेस्ट थिंग्स वर गोइंग रियली वेल। हम्म, देयर वाज अ लिटिल प्रॉब्लम विच हैपेंड, जो मैंने खुद ने ही अपने आप के साथ बहुत स्ट्रेस लेके कर लिया था। हम्म, एंड मैंने अपनी खुद की ही लाइफ बिगाड़ डाली थी, अदरवाइज सेकंड अटेम्प्ट हो जाता। हम्म, आई एम शिलोंग एंड माइका, हाँ, एंड फॉर विच आई वाज प्लानिंग आल्सो टू टेक एन एडमिशन, बट हाँ, समवेयर माय हार्ट, हाँ, जो वो छोटी बच्ची ने सोचा था आई एम अहमदाबाद जाने राइट, हाँ, वाला, started coming up again. Like I thought I was being unfair to myself. या, एक अटेम्प्ट दे देते हैं, हाँ, क्या पता ये टाइम हो जाएगा। आई वॉज हाँ, 21 years old, आई कुड हाँ, टेक दैट रिस्क टू डू इट। हाँ, तो हाँ, मैंने कर लिया। नॉट एवरी वन वॉज सपोर्टिव फॉर हम्म, माई थर्ड अटेम्प्ट, क्योंकि आई वॉज हैविंग टू कॉलेजेस विच वर ऑल्सो रियली गुड, आप ले सकते हो, हाँ, राइट, बट एक अंदर से जुनून थी। एंड आई वाज लाइक, सो मेरे प्रोफाइल के 8 लोग जाते टू बी प्रिसाइज इन आई एम अहमदाबाद, जो हाँ, पिछले बैच का था, हाँ, हाँ, एनालिसिस जो आया था। हाँ, आई वाज लाइक आई विल बी दोस वन ऑफ दोस 8 people हु हम्म, वुड बी देयर गेटिंग एन एडमिशन। हम्म, दूसरे, मतलब 7 people could be anyone, but the eighth person is विज surely me राइट, who's राइट, going inside I am Ahmedabad. ओके, So okay. yeah. So it's very motivating also. Like I'm also getting some motivation from you also. And one more thing I just want to ask you from right now, because so you are talking about some profile. So what is this profile meaning actually for IIM Ahmedabad? You will talk. तो पहले ना ऐसे, Yeah, देर इज अ लॉट ऑफ फैफ विच इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, ओके, कि right. आपको सोशल सर्विस करके आना है, आपको Mm, रिसर्च पेपर करके आना है, आपको mm, ये करके आना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के मेडल लाना है। mhm. टू बी ऑनेस्ट 90% ऑफ माई बैच डजंट हैव एन इंटरनेशनल लेवल मेडल्स इन स्पोर्ट्स। और Oh. जब मैं ये फॉर्म Mm, फिल कर रही थी तो मुझे mm, बहुत दर्द लग रहा था कि आई एम पुटिंग एवरीवेयर 0 0 0 0। okay. Okay, so I Uh, thought whether I'll be selected or not, but when I uh, entered, ये कुछ भी नहीं है। So mm, there is a lot of fact which goes on, and uh, since I am a student who's graduated and I know almost की profiles कैसी है, uh, everyone is very unique. For uh, example, Pankaj is a student who has a lot of research papers in his mhm, place. mhm. Somebody else has a lot of patents. उसने Right. कुछ किया होगा वैसे। Yeah. Huh. I have very strong organizing background. Mhm, Somebody else has an social service mhm, background. mhm, किसी ने कुछ म्यूजिक में करा है, किसी ने डांस में करा है, कोई मिस इंडिया होके आया है। mhm. एवरीवन इज वेरी डिफरेंट, सो देर इज नो वन सेट प्रोफाइल Yeah. जो लोग बताते हैं। यू कैन Mhm. डू वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू लाइक, Yeah. एंड जस्ट एस इट एज मच एज पॉसिबल। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट ऑल्सो, कि जिसमें आपको मतलब अच्छा लगता है वही चीज आपको, आई थिंक उसमें आप बेस्ट देख पाएंगे, राइट? ओके, एंड हाँ, वन अदर क्वेश्चन आई जस्ट वांट टू आस्क इज दैट सम स्टूडेंट्स आर देयर ऑब्वियसली, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू दोज whose result is not good from the last few years, like yours was not also good, so उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? हम्म, okay, so there are 3 points precisely which I would like to say. First is believe in yourself कि हम्म, आप कर सकते हो. Once you do that, your हम्म, half battle is crossed. And this हाँ, is not only my words but also Arun Sharma जिनकी हम्म, किताबें आप पढ़ते हो. तो I'm हम्म, taking it from him also when I had हम्म, sat in this section हम्म, कि please believe in yourself, you can ace it and you will go through it. हम्म, Second thing is have small हम्म, steps. हाँ, आप क्या करते हो, आप डे वन पे प्लान करते हो कि आपको 99 परसेंटाइल आने चाहिए। हम्म, हम्म, अब आपको 99 नहीं आने वाले, तो यू विल गेट डिमोटिवेटेड। हम्म, इफ यू आर एट 50 परसेंटाइल, योर नेक्स्ट एम शुड बी टू जस्ट गेट अ +5 yeah, +5, right, नॉट इवन परसेंटाइल, आई एम सेइंग ऑफ रॉ स्कोर। हम्म, +5 के लिए आपको बस 2 कम गलत करने हैं, दैट्स हम्म, इट, दैट्स हम्म, इट। right, 2 कम गलत करते हो आप, वैसे ही आपका प्लस आई थिंक 7 हो जाता है, +5 6 हो जाता है। हम्म, सो जस्ट एम फॉर दैट बेसिक थिंग। हम्म, हम्म, +8 हो जाता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। हम्म, एंड third very thing is कि these are all just basic exams, okay? right, Take your CAT, take your NMAT, XAT या जो भी exam है as a mock. So the हम्म, more relaxed you are, the less stress do you have in your mind, the better that paper will go. The happier you are, whatever you like, just do all of these things. Do not just get into all of these things so much and take it into your heart. The time you'll become a little relaxed, वो चीजें हो जाती है आपकी। ऑब्वियसली है, स्टे काम फर्स्ट थिंग, और जो ईसा ने बताया है वो सब चीजें आप अगर करेंगे तो इट विल बी ऑब्वियसली देयर विल बी गुड रिजल्ट। ओके, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैं, ईसा, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई थी इन इन योर प्रिपरेशन फेज फॉर बेसिकली फॉर द कैट एग्जाम, जब आप प्रिपेयर कर रही थी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी आपको?
तो फर्स्ट थिंग इज पीपल डू नॉट नो, मतलब ये हो जाता है कि पोर्शन क्या है, कहीं पोर्शन मेंशन नहीं किया है, तो यू स्टार्ट फॉलोइंग कि मेरा पोर्शन हुआ नहीं, मुझे मॉक देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। बट आई रियलाइज कि आप मॉक दे दो, क्योंकि क्या ही फर्क पड़ रहा है। एंड इट्स अ मॉक टेस्ट, मॉक का स्कोर सिर्फ मेरे पास रहने वाला है। आई विल नॉट स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक्स बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को क्या लग रहा है कि मुझे सिर्फ 50% आ रहा है, बट किसको पता है। राइट। आप बाहर कुछ भी बोल दो, मुझे 90% आ रहा है, भले आपको 50 आ रहा है, ठीक है। सो द रिजल्ट स्टेज विथ यू, डू नॉट टेल इट टू द वर्ल्ड, राइट? सो यू नो वेयर टू यू इम्प्रूव योर सेल्फ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग अ गुड सर्कल। आप किसके साथ पढ़ाई कर रहे हो, कैसे आप माइंडसेट में रह रहे हो, आर दीज पीपल मोटिवेटिंग यू और नॉट मोटिवेटिंग यू, हाउ आर दे बिहेविंग, दैट हैज अ लिटिल इम्पैक्ट ऑन how you will also further ace. So I started being with a lot of people who were preparing into MBA colleges and all. I started talking to a lot of these people who had similar mindset rather than कि अरे मैं जॉब करके पैसा कमा रहा हूँ, MBA क्यों करना है तुम्हें, वगैरह वगैरह. Now we see what the differences are, but you know there are people who going to demotivated. So people are very important, and the most important thing that I had was having the right mentors. आपको जो मेंटर्स पुश करते हैं ना, आई डोंट थिंक एनीवन कैन पुश यू टू दैट लेवल. माय पेरेंट्स did not have a lot of backgrounds for all of these things, so they were not able to guide me. But for that my mentors did play a very important role. Ki I remember when I was going to give up after my second attempt, I was not ready for my third attempt, but it was my mentor who pushed me कि तू क्या यहाँ जाएगी, तू IIM अहमदाबाद के लिए बनी है, तू IIM अहमदाबाद ही जा रही है. So yeah, those are I think the three important things. One is you, one is your friends, and one is your mentor. Right. Exactly. And I'm totally agree with this also. And one last question before moving to the interview phase कि आपका strategy क्या था? What was your strategy for the CAT exam basically? And what do you want to suggest for this? So during on day, okay, I had a plan कि since I want to be 100% either, I entered my mind like that कि मैं 100% लेके निकल रही हूँ आज. So how will a 100% person attempt the paper? Okay. He will try to maximize into whatever he has. He will not be afraid कि मैं ये ऑप्शन में डाल देता हूँ या कुछ, ठीक है, बिकॉज आपको तो सबसे ज्यादा स्कोर करना है. तो मैंने कोई चीज ऑप्शन में नहीं डाली थी. जो मेरे पिछले मॉक्स की पिछले कैट एग्जाम की प्रॉब्लम थी कि मैंने कुछ चीजें ऑप्शन में डाल दी थी. हमारी स्कूल वाली आदतें हैं, तो कुछ भी चीज ऑप्शन में नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना था, और कोई किसी चीज को तुम्हें अपने दिल पे नहीं लेना था. आई हैड लर्न दिस लाइन, flirt and leave, don't be in a serious relationship with any problem that you come over there. Right. And that really helped me in DILR set. Okay, DILR is a little logical reasoning and data interpretation. वो थोड़ा सा एक ये हो जाता है. आप अगर एक सेट पे अटक गए तो आप अटक गए. आई रिमेम्बर मैंने मेरा जो फर्स्ट सेट था वही गलत किया था, फिर वो वापस आके मैंने बाद में सुधारा था. आई डिड नॉट जस्ट सिट एट वन प्लेस एंड जस्ट सैड बिकॉज मुझे, और वो बहुत इजी था. ओके, इट वाज अ 4 minute thing, but I was just having a lot of thoughts. So I was like, okay, let me just move right now and let me come back to it again. अभी इस पे दिमाग नहीं लगाना. I think these small things did help me out कि क्या करना है. And I was very flexible क्योंकि पता नहीं था क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, सब एक साथ ही पेपर लिख रहे हैं. तो जस्ट बी विथ एन ओपन माइंड. जो आ रहा है, क्रिकेट में जैसे होता है, जो बॉल आ रहा है आप उसका छक्का मारना है आपको. राइट, एग्जैक्टली. You cannot plan it. That's it. एग्जैक्टली. और मैं बोलूंगा अपने व्यूवर्स को कि कैट एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे. तो अब हमारा जो मेन फोकस है इस वीडियो का वो है इंटरव्यू फेज. अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं. तो इस समय सबसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कि कितना टाइम आपके पास था कि जब आपका रिटर्न हुआ उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, उसके अराउंड कितना टाइम था और कब से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया फॉर इंटरव्यू? I'll just give you a rough timeline. हाँ. अराउंड नवंबर एंड में आपकी एग्जाम होती है से कैट की. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कैट राइट नाउ. आपका रिजल्ट आता है जनवरी फर्स्ट वीक, अराउंड 4th 5th 6th ऑफ जनवरी. उसके बाद से आने लग जाते हैं धीरे धीरे. बाय 30th जनवरी कॉलेजेस विल स्टार्ट. सो इट स्टार्ट्स विद ABC गिविंग कॉल्स, देन लखनऊ, इंदौर, कोझिकोड, वो सब चालू कर देते हैं अपना अपना. टिल 30th जनवरी आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिग कॉलेजेस, एटलीस्ट द IIMs, हैव स्टार्टेड giving all the calls. And आपकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाती है because I think IFT was my first interview, which was in January last week. Okay. But IIM interviews usually happen in February. Okay. So we have 3 to 4 months. 3 months.
अराउंड? 3 months you can take, around 3 months होता है आपके पास ओके फॉर से एन IIM अहमदाबाद बैंगलोर के इंटरव्यूज के लिए। ओके। जो इंटरव्यू का प्रिपरेशन है ये कैसे डिफरेंट है अदर इंटरव्यूज से, जो आईआईएम की मैं बात करूँ तो? Um, तो IIMs में जैसे these guys are very open. Okay, this is my interpretation of the entire interview. राइट, हाँ। The entire interview is around you. तो वो या बस वही चेक कर रहे हैं आपको कि आपको अपने बारे में कितना पता है, rather than going into a lot of bookish knowledge. जितने मेरे अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता के इंटरव्यूज हुए हैं, those were more about me, what I have studied, what I have done, rather than asking me कि CST स्टेशन का आर्किटेक्ट कौन है, जो मेरे अपनी लाइफ में कुछ काम नहीं आने वाला। आई नो आई एम फ्रॉम मुंबई, बट इट डजंट हैव अ वेरी इम्पैक्ट ऑन मी। इट्स अ स्ट्रेस इंटरव्यू, आई नो इट हैपेंड इन कोझिकोड, ओके but Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta were much more like a discussion that they were trying to do, rather than trying to interview me on or giving me a lot of stress. Even when they saw a little stress on me, they tried to calm me down सामने से. So I'll just give you a brief. So all the 3 interviews were around 30 minutes each for me. Ahmedabad में it was initially around I think 15 to 20 minutes about my work experience which I have done before, that I mentioned in outdoor. Right. Then around 10 minutes it was on a particular, like, laws. Okay. And now why they came on laws, because I had studied that in my undergraduation, in my 11th 12th standard. Commerce में law is a very important thing. And उस साल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स पास करे थे. You also need to understand कि बाहर क्या हो रहा है लाइफ में. Right. There were several laws like 377 and all which were passed in 1 year back to back. Right. I know Supreme Court was quite active. So, Right. Which was a little obvious कि laws आने वाले थे. And I apparently said a verdict was a little wrong according to me. So they did not take a backfire कि how are you questioning the highest authority of India who takes the judgment. They were like, okay, if you were in that place, what would you have done? Bless you. How would you have done differently? And what is your logical statement behind all of these things? And they appreciated it. Okay. You can put forward your points in an Ahmedabad interview quite. So the best thing about I am Ahmedabad interview was when even I was saying कि okay मेरा opinion थोड़ा अलग हो सकता है, say from a Supreme Court, they were ready to accept that. They were asking my opinion, my logical reasoning. As a manager, I will have my opinions. I'm supposed to have any logical reasoning which you're just not following the herd, but you have particular things in mind when you're commenting. So these are the things that they were acknowledging and appreciating also. Whereas my Bangalore interview was much more about what I have done previously, which was finance. Okay. So they asked me a lot of questions about finance and they gave me practical examples. We were in Taj Hotel and they were like, अगर हम एक फ्लोर और ताज में ऐड कर देते हैं तो when do you think is a break even point? And this is something which I have done. Okay, तो do not get afraid कि ये क्या क्वेश्चन आ गया. ये मेरा काम था, ये मेरा पढ़ाई था, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आना बनता था. They asked me about my internship. मैंने internship में क्या किया, कैसे किया था, and मेरे work के बारे में पूछा था, hobbies के बारे में पूछा था, कि आप hobbies में क्या करते हो, कैसे करते हो, what do you like, what do you not like. तो these were again things which were around me. In my Calcutta interview, they asked me a guesstimate कि एक प्रोडक्ट की डिमांड कैसे निकाल सकते हैं in Mumbai. Okay. Again, this is what I have done previously. Okay, it's not मतलब ये मेरे करिकुलम का पार्ट है because और करिकुलम और I think on the job का भी मेरा काम था to understand the demand and everything where I was working in outdoor. तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा. मुझे बोला कि आप कैंपेन बनाओ फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात कि अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हो, दे वांट टू इंक्रीज द टूरिज्म, हाउ वुड यू डू इट. अगेन आई कम फ्रॉम एन आउटडोर मीडिया, आई विल डू दोस थिंग्स. सो दीस 3 वर मेजरली अराउंड ओके. एक क्वेश्चन व्हाट आई हैव डन प्रीवियसली. या राइट. एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इंटरव्यू के टाइम पे वो जो लोग हैं, इंटरव्यूअर जो हैं, वो कितना आपके बारे में जानते हैं, कि उनके पास आपके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं? सो एक फॉर्म होता है, जैसे हमारी शॉर्टलिस्ट अनाउंस होती है वैसे एक फॉर्म भरना होता है. हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है. उसमें ज्यादा डिटेल्स होती नहीं है कि मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उनको वो पता है कि आपने ग्रेजुएशन डिग्री कौन सी करी है, तो उनको पता है कि आप बेसिक क्या करके आए हो.
मतलब व्हाट आर द सब्जेक्ट्स मेजरली क्या क्या होते हैं, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज। ओके। सेकंड होती है आपकी वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो कंपनी का नाम, तो कंपनी के नाम से वो इंडस्ट्री निकल जाती है आपकी। और आपने एज अ रोल कौन सा करा था, आपने मार्केटिंग करा, इंजीनियरिंग वाला पार्ट किया, फाइनेंस किया, जो भी, तो दे हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ दैट। ओके। And the third main important thing is your introduction that you're giving in the first 30 seconds or 1 minute. ओके। हाँ। No matter what. So you prepare for multiple version of your like your इंट्रोडक्शन। introduction, because you will gauge कि उस आदमी को कितने मिनट तक सुनना है आपको। ओके। He'll be like 30 seconds तक का सुनना है तो आप तभी बंद कर दोगे, वरना 1 मिनट तक का बोलोगे। You will keep a good enough introduction and multiple versions of it. ओके, इंट्रोडक्शन का अगर हम बात करूं तो व्हाट स्पेशल स्टूडेंट विल हैव, कि एक स्टूडेंट के पास क्या स्पेशल इंट्रोडक्शन में होना चाहिए कि सामने वाले को इम्प्रेस कर पाए? इज देयर एनीथिंग फॉर यू, फॉर अकॉर्डिंग टू So यू? everyone, I think everyone has a very different way of introducing basis on their personality. राइट। हाँ। So for one, I had tried to create like an ad kind of a theme, since I come from an ad background. तो मैंने थोड़ा सा एक ad जैसा इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश करी थी, एक पोएट्री हो या एक जिंगल हो, so that you know it's giving me like out of a 20 around 20 interviews they take in a day, ये बंदी मेरे दिमाग में रह गई थी। ग्रेट। बट आई वुडेंट सजेस्ट, अगर आपकी वो पर्सनालिटी नहीं है या आप वो पिकअप नहीं कर पाते हो, आई हैव दैट पर्सनालिटी, आई कैन पिक इट अप एंड आई कैन टेल इट टू यू। इट शुड पर बी ऐसा ना ट्रू। हो जाए कि आपने, हाँ, अगर आपने ये कर लिया, उसके बाद के क्वेश्चंस फिर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो उतने अच्छे तरीके से, ओके। तो डू विच एवर इज बेस्ट फॉर यू, विच सूट्स यू बेसिकली। हाँ, तो वो करना चाहिए बेसिकली। यस। ओके। सो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वो है कि जो लोग कैट का रिटर्न एग्जाम क्लियर कर देते हैं, उनके बाद उसके बाद स्टेप्स क्या होते हैं कि हमें इंटरव्यूज में जाना है, तो व्हाट आर द स्टेप्स बेसिकली? तो शॉर्टलिस्ट, जैसे मैं बता रही थी, शॉर्टलिस्ट तो बहुत बाद में आती है, बट अराउंड आई थिंक 1 वीक में आपको पता चल जाता है कि कैट रिलीजेज अ स्कोर शीट, नॉट एग्जैक्टली अ स्कोर शीट, बट एक आंसर शीट निकाल लेता है। ओके, तो देन यू माइट रिमेम्बर योर बेसिक आंसर्स कि आपने क्या क्या मार्क किया था, देन यू मैप इट कि आपके अप्रोक्सीमेटली स्कोर्स कितने तक आ रहे हैं। और मोटा मोटी सारी क्लासेस ने ना परसेंटाइल कैलकुलेटर बनाया होता है, तो यू जस्ट मैप योर मार्क्स ओवर देयर एंड सी कि कितनी आ रही है और आपके चांसेस कितने हो पा रहे हैं। बिकॉज आपका जो शॉर्टलिस्ट है वो तो जनवरी में आ रहा है ना, तो अब नवंबर तो खत्म हो गया, तो दिसंबर तो आप बर्बाद क्यों कर रहे हो ना। यू शुड स्टार्ट वर्किंग इटसेल्फ इन द दिसंबर मंथ। जैसे मैंने कैट के अगले दिन एक दिन ब्रेक लिया था, मंडे को, एंड फ्रॉम ट्यूसडे आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय इंटरव्यूज, बिकॉज आई हैड अ बेसिक आइडिया दैट आई एम गेटिंग ऑल द कॉल्स। Okay. I was getting in the range of around 99.4 something. So I thought कि अब तो सारे calls आ ही जाएंगे, because I was competing with commerce people. I'm not competing with engineers. Okay. वो उन्होंने IIMs ने अब अलग कर दिया है थोड़ा। Right. So I started preparing. Now मोटा मोटी you start preparing any interview in 4 parts. Okay. Now one is about yourself. Okay. Anything and everything which is related to you. Now that will include me, my parents, my family, my native place, मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ, प्लस my native place जो भी हो सकता है। उन सब की जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी हो सकता है। ओके, इफ दे हैव अ सिग्निफिकेंट हिस्ट्री और अ टूरिस्ट प्लेस और समथिंग लाइक दैट। मेरे नाम का मतलब क्या है, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, माय वीकनेस, क्या बोलते हैं, मेरी हॉबीज क्या है, एवरीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू मी। इट्स ओनली, हाँ। ओके। दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकंड इज योर एकेडमिक्स, आपके ग्रेजुएशन या +1 2 में जो भी आपने पढ़ा होगा, तो उसके रिलेटेड, बट व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट कम्स इनटू द प्ले। द थर्ड इज योर वर्क एक्सपीरियंसेस, ऑल्सो योर इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, अगर सीए है तो आर्टिकलशिप भी आ जाएगा। तो वेर एवर यू हैव डन, तो उस कंपनी के बारे में, आपके जॉब के बारे में, वो कंपनी कौन सी इंडस्ट्री में आती है, उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, क्या चल रही है, एवरीथिंग that comes as a third part. And fourth, I usually say a general knowledge miscellaneous kind of a thing, जो लास्ट 1 साल में आपकी कंट्री में या फिर ओवर द वर्ल्ड जो बड़े टॉपिक्स हो रहे हैं, एटलीस्ट दैट यू शुड नो, बिग इश्यूज। अब हाँ, अब जैसे अगला बैच अभी जनवरी में जो भी प्रिपेयर कर रहा है, दे आर बाउंड टू आस्क अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर। यू कांट गेट आउट ऑफ दैट क्वेश्चन।
you can't get out of the recession question which is going to come कि recession के ऊपर आपके ये क्या है, and as a finance minister how would you have solved it, or as a government how would you have solved it. ठीक है, तो ये these are I think the broad questions that you should focus on, and this will also cover your written test plus your GD वाला aspect जो आता है, अगर general मतलब general knowledge के बारे में कुछ भी question आता है, so these are the things which मोटा मोटी will cover everything. Right, exactly. Okay. So my next question is कि अब हम थोड़े अदर फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू के टाइम पे नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल. हाँ, इस तरह के फैक्टर आपके इंटरव्यू में कैसे मतलब अलग थे, या कैसे उन्होंने वर्क किया बेसिकली? तो आपको भी नर्वसनेस तो ऑब्वियसली होगा. Yeah, I was a little nervous during SP Jain interview. It was my first interview. Okay, yeah. तो तब मैं थोड़ी सी ज्यादा nervous थी because I do not know कि क्या होगा, कैसे होगा, how I should go about things. तो that you could see in my face also. Plus there are so many people coming around. They're all confident, and you know you think कि आप ही इतने deserving नहीं, ये लोग सब ज्यादा deserving है आपसे. There are some people who can also like you know fake confidence. You should fake confidence. अगर नहीं होता. For my Ahmedabad interview, I was really happy because you know this was the day I was dreaming for since last 7 years. तो मतलब वो मुझे स्ट्रेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वहां खुशी खुशी आंसर दे रही हूँ. मुझे समझ ही नहीं रहा वो मुझे स्ट्रेस कर रहे हैं, बिकॉज आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज dancing around in the lobby, I was singing, I was doing everything possible. Like the others were getting scared on that day after looking at me, the way I was dancing around. कि इस बंदी ने तो क्रैक कर लिया, ये ऐसे बिहेव कर रही है. Right. Bangalore, I was a little nervous. So Calcutta also, I was a little nervous. Calcutta did not have a lot of girls or non-engineers. I think I was the only non-engineer in that entire panel of Calcutta. Okay. We were 50 kids. 49 were either engineers or science background, Right. BSc. Yeah. So I was the only one, and I was like, यार अब तो मतलब उनको ऐसा ना लगे कि मैं भी इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियरिंग के थर्मोडायनामिक्स पे क्वेश्चंस पूछते हैं. Right. Exactly. And they were asking a lot of questions on COVID, and COVID was a recent topic that time. अभी तक COVID आया नहीं था इंडिया में. I was like, I do not know much about COVID. अब क्या करूँ? And so I had a trick to like boost my confidence. Okay, since I come from ad background again, I have the habit of like you know going through a lot of jingles of ad, which helps me in like you know coming back to my creativity side again. So I started singing jingles in front of the waiting room of my I Am Calcutta panel, and people were staring at me, ladki pagal ho gayi. But I was like, no, that's my way to get confidence. Yeah. Listen to songs, do whatever that you like to like you know boost your confidence. And उस समय बस 20 मिनट तक खुश रहना. 20 मिनट उसके बाद हो गया, उसके बाद तुम्हें बाहर आके रोना है तो रो लेना. बट 20 मिनट तक इतना कॉन्फिडेंट मतलब फेक कॉन्फिडेंट कर लेना. एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस थिंग विच आई यूज टू डू फ्रॉम माई स्कूल इटसेल्फ. आई प्रैक्टिस माई आंसर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर. मतलब कभी भी कुछ भी होता है, so I start practicing in front of mirror. I look at myself whether I'm feeling confident or not. Okay. You can also do one thing, जो अब तो Zoom वगैरह आ गया, record yourself. Right. Introduce yourself, record it, and then you replay it again. Analyze. And then you replay it one more time. Analyze कि आप कैसे बात कर रहे हो, आपके hand gesture कैसे है, आप confidence हो, आप confidence नहीं हो, आप कहाँ अटक रहे हो. मतलब do this thing multiple times, and these clippings are only with you. Those are not going anywhere else. Nobody else is judging you. That you should remember. That's it. Yeah, and these things surely will enhance your everything. Okay. एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा कि किसी भी इंटरव्यू में, IIM के किसी भी इंटरव्यू में आपको कभी ऐसा लगा कि यार मैंने गलत बोल दिया, या फिर मेरे को ये नहीं बोलना चाहिए था, काइंड ऑफ इनकरेक्ट चीजें आपने बोली, ऐसा फिर आपने कैसे कवर अप किया उसको? So, जैसे मैं अहमदाबाद का इंटरव्यू बता रही थी, I very confidently said that I do not agree with Supreme Court का verdict. Okay, at that time I was just in the moment of heat कि मैंने बता दिया कि नहीं सर, मेरे हिसाब से तो ये होना ही नहीं चाहिए था. Then we had a brief discussion on religious and beliefs and everything, and I did get a lot of personal, okay, to a point that I had almost tears in my eyes. I was that into that topic. Okay, I was like कि नहीं सर, कुछ चीजें हैं जो
in between the interview, Wow. okay? Uh, And I'm starting quoting uh, like supreme religious leaders and all of these things. And I was, uh, सर ये चीजों पे मैं बिलीव करती हूँ, इस चीजों में बिलीव नहीं करती हूँ, uh, ओके? uh, एंड ये सब चीजें मैं बोल के आ गई। uh, एंड पर्सनल चीजें भी मैंने कुछ अपने लाइफ की बता दी उस सब चीजों में, uh, रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। uh, एंड वंस आई केम आउट आई वाज लाइक शिट, मैंने कुछ ज्यादा पर्सनल तो नहीं चली गई थी मैं uh, उसमें, uh, यू नो, आई वाज ट्राइंग टू uh, कोट माई आंसर्स सो मच कि मैं uh, एकदम ही ज्यादा पर्सनल चली गई थी उस uh, सब चीजों के अंदर। uh, बट आई थिंक दोज थिंग्स might have helped me, I don't know how, uh, but that did help me because I was quoting my own instances, uh, other people's instances, what is happening currently, uh, and I was very well aware। मैंने उनको बताया सर जो कल के अहमदाबाद मिरर में जो है ना फ्रंट पेज में जो आया था ना, मैं उसको कोट कर रही हूँ। okay. इमेजिन इफ यू नो टिल दैट एक्सटेंट, यू आर फ्रॉम मुंबई एंड यू नो अहमदाबाद मिरर के फ्रंट पेज में क्या आया हुआ था, Yeah. एंड देन यू नो इट डिड, आई थिंक, हेल्प आउट मे बी। ऑब्वियसली ये चीजें हेल्प करी ऑब्वियसली। बट कहीं ना कहीं आपको इन बिटवीन द इंटरव्यू लगा था कि यार, इन बिटवीन द इंटरव्यू आई एम टॉकिंग अबाउट, कि ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उस फेज को आपने कैसे किया? फिर मतलब तो वही वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हम्म, जस्ट मुझे सूझा था, व्हेन वी वेंट इनटू अ लॉट हाँ, रिलीजियस बिलीफ्स, आई वाज लाइक शिट यार, हाँ, मैंने ये क्यों बोला, अग्री करके मैं हम्म, निकल ही गई होती ना इससे कि हाँ ठीक है, आई अग्री विद इट। ओके, बट देन आई वाज लाइक ओके लेट्स सी वेयर द डिस्कशन गोज, एंड नाउ आई कांट गो बैक एंड चेंज इट, क्योंकि फिर वो आपका खराब दिखता है कि मैंने ये पॉइंट बोल दिया। हम्म, एंड आई एम लाइक नहीं 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 सर, नाउ आई अग्री विद इट। लाइक आप स्टेबल नहीं हो आपके इसमें। हम्म, नाउ व्हाटएवर यू अग्रीड विद और व्हाटएवर यू स्पोकन, जस्ट गो अहेड विद इट राइट। and back it up with like whatever he or she is trying to ask you out। ओके। तो जो स्टूडेंट्स अभी कैट का एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आगे आने वाले समय में कर रहे हैं, है ना, तो मुझे नहीं लगता है कि विद इन 3 मंथ आप अपने आप को इतना मतलब मोल्ड कर देंगे कि आप इंटरव्यू के लिए अच्छे बन जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी स्टूडेंट्स को कि जो कैट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं आगे, तो किस टाइम से, वो किस फेज ऑफ लाइफ से उन्हें लगना अपना इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? तो आई रियली थिंक कि जैसे न्यूज पढ़ना तो डेली, हम्म, इररिस्पेक्टिव आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि नहीं, वो न्यूज हम्म, पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम्म, हम्म, एक साथ फिर है ना आप पे बहुत भारी पड़ जाता है। हम्म, सो इवन इफ यू आर अटेम्प्टिंग फॉर कैट 2022 हम्म, राइट नाउ, हाँ, तो जैसे एग्जाम खत्म हो जाती है 7 दिन के बाद, उसके हाँ, बाद अगले दिन से आप एटलीस्ट न्यूज तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, Do read news from multiple newspaper, हम्म, and then you form your own opinion, okay? You should have your own opinion, not कि एनडीटीवी ने ये बोला या इकोनॉमिक्स टाइम ने ये बोला या किसी और चैनल ने ये बोला। हम्म, What do you think? Because these all media houses are now bought out. या So राइट, try to have multiple perspectives and then you claim कि ये मेरा व्यू लूज, पॉइंट है या, बिकॉज ऑफ these reasons। ठीक ओके, है। एंड सेकेंड थिंग है, स्टार्ट नोइंग अ लॉट मोर अबाउट योर सेल्फ, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग, क्योंकि ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस है वो आप ही के रिलेटेड है। ओके, एंड अगर आपको आपके बारे में नहीं पता, तो देन देर इज समथिंग प्रॉब्लम। या, इफ आई एम आस्किंग यू योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, if you do not know, okay, and maybe you know there are these certain things which people quote a lot, maybe ask your friends. So there is a good way that SP Jain removes. There are 5 lines that you're supposed to remove. How do you think about yourself? How do your family, friends think about yourself? How do your immediate boss thinks about yourself? How does your immediate junior thinks about yourself? How does your sibling think about yourself? ओके, Okay. तो इससे ना आप अलग अलग perspectives बना देते हो. How do I see myself with others? How people see me? And where I actually want to have my image. या, तो ये सब चीजों से ना थोड़ी थोड़ी यू विल कम टू नो एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। अगर आप कैट 23 के लिए भी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो न्यूज पढ़ना ना आप डेली हैबिट रख लीजिए, 1 आवर पर 1 आवर तो आप ये कर लेना। और उसकी बाद की जो भी चीजें है ना, आई एम प्रिटी श्योर क्लासेस वाले या कोई भी होगे वो आपको 2 महीने में निकाल देंगे। या, इट्स इजियर एंड इट्स मैनेजेबल। तो वो 2 महीने में निकल जाएगा, बस न्यूज आप डेली पढ़ते रहना, इट्स अ गुड हैबिट फॉर यू ऑल्सो। ओके। तो आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि हमने मोस्ट ऑफ पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, और जो स्टूडेंट्स अभी भी इंटरव्यू में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल रिप्लाई फॉर श्योर। एंड अब हम बात करेंगे आपकी आईआईएम अहमदाबाद की जर्नी के बारे में, है ना। तो सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अबाउट आईआईएम अहमदाबाद, कि हाउ वाज योर जर्नी? हाँ, कैसी आपकी जर्नी थी वहाँ पे, क्या चीज़ें आपने यूनिक चीज़ें सीखी वहाँ पे, और क्या 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 हुआ आपके साथ वहाँ पे, प्लीज। तो
what I had planned, मतलब हम्म when I was in 2014 in my 11th standard की ऐसा होता है वैसा होता है, वो इतने सॉन्ग्स इतने फेस्टिवल्स दिखाए गए, हम्म तो दोज वर अ लिटिल डिफरेंट क्योंकि हमारा थोड़ा कोविड बैच हो गया था, तो हम्म चीजें थोड़ी ऊपर नीचे अलग हो गई थी। द वे वी सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स थोड़े अलग हो गए थे। हाँ मैं खुद कल्चरल कमिटी में थी, हाँ तो अब हमें नवरात्रि प्लान करनी है, तो नवरात्रि विद मास्क इट्स अ वेरी क्लोज इवेंट। ओके तो अब हम ज्यादा लोगों को साथ में नहीं ला सकते, कोविड का डर है, हम्म गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस है। हम्म तो उन सब चीजों को हमें बहुत अलग अलग चीजों में मतलब अलग प्रॉब्लम्स फेस हुई थी जिसे हमें चेंज करना था। हम्म तो वो जो पूरा कल्चरल एस्पेक्ट था वो थोड़ा हमें कम मिला है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी हम्म हमारे बैच में हमने ज्यादा दोस्त बनाए हैं इन कंपेयर, क्योंकि अब हम्म, हमारे फ्रेंडशिप सिर्फ डॉर्म्स या क्लासरूम से नहीं, सेक्शन से कनेक्टेड नहीं थी। हाँ वी वर मेकिंग फ्रेंड्स अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द बैचेस, हाँ अक्रॉस डिफरेंट कोर्सेज, बिकॉज वी ओके ऑल वर इन ऑनलाइन फॉर्मेट। हम्म तो हमने उन सब चीजों का बहुत फायदा उठा लिया था कि ओके ना, you have multiple avenues to do different things together. You या are in a different part of the India, but we are all together. राइट तो हमने उन सब चीजों को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया था, आई थिंक बिकॉज ऑफ विच हमारा बैच विल बी अ वेरी यूनिक बैच इन द हिस्ट्री ऑफ IIM Ahmedabad, द कोविड बैच। हाँ वन थिंग दैट आई लर्न स्पेसिफिकली इन IIM Ahmedabad वाज हम्म कि आपको कोई कुछ पढ़ाने नहीं वाला है आपके लिए, ओके आपको खुद से करना है। तो हम्म IIM अहमदाबाद का करिकुलम ऐसा होता है कि हम्म कोई भी पर्टिकुलर केस जो कल डिस्कस होने वाला है, से हम्म फॉर एग्जांपल हम्म मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, तो हम्म यू आर एक्सपेक्टेड कि आप वो केस पढ़ के आ रहे हो, आप उसके साथ रीडिंग्स पढ़ के आ रहे हो, आप हम्म, उसको सॉल्व करके फाइनल आंसर के साथ क्लास में आ रहे हो, ओके और क्लास में सिर्फ सोल्यूशन डिस्कस हो रहा है। ओके We are not discussing ki what is a merger, what is an acquisition, what are the pros and cons of हम्म a merger and acquisition. हम्म So those are, I think, very different things which are very specific related to IIM Ahmedabad as compared to any अदर other colleges. एग्जैक्टली ओके एक चीज Colleges. और हाँ एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि शेड्यूल मतलब मैं बोलूंगा कि अच्छे कॉलेजेस में टाइम बहुत कम रहता है तो आपके पास भी टाइम मिलता था एक्स्ट्रा करिकुलम करने का या फिर एक्स्ट्रा मस्ती करने का या फिर एजुकेशन का बहुत ज्यादा बर्डन था मे बी आई डोंट वांट टू से So, बर्डन दिस थिंग हाँ so education is a lot of priority in हाँ IIM Ahmedabad. हम्म, Ahmedabad में IIMA, A stands for academics. हाँ So it's a very important thing. हम्म But on the contrary, I think a person makes time for everything he or she wants to do. A ओके person like sports, वो जाके शाम को sports खेलने ही वाला है, because हम्म that helps him to do better in his academics as well. या I am very much into extracurricular activities. I will never leave extracurricular activities irrespective. I like socializing. I will socialize with people. I will not stop with that particular point, right? ओके So you हाँ will learn how to balance between the things. हम्म, एंड जो जो एक मिथ होता था कि IIM में सिर्फ 4 घंटे की नींद होती थी, हाँ ट्रस्ट मी ये मैं 7 घंटे सो जाती थी। हाँ And I still had good grades. I was very like active in terms of my class participation, in terms of extracurricular activities, in terms of networking, socializing. हम्म जो भी मुझे जितनी चीजें करनी थी मैंने सारी कर ली थी। एंड आई हैड गुड स्लीप बिकॉज आई नो कि मेरी अच्छी नींद से ये सब चीजें हो जाएगी, ओके तो मैं वो बैलेंस कर लेती थी। या इट्स ग्रेट और एक चीज और मेरे दिमाग में आई है अभी कि जब आप छोटी बच्ची थी जब 11th स्टैंडर्ड में थी है ना और जब आप IIM अहमदाबाद में आई तो वहां पे जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये मेरा ड्रीम है ड्रीम कॉलेज है तो वो एक्सपेक्टेशन कितना मैच हुआ और या फिर कितना ज्यादा था उससे इवन दो इट्स तो कोविड बैच बिफोर आई एंटर्ड हाँ हाँ before I entered, it was like a very magical place. Okay, like I हाँ am Ahmedabad, हाँ and oh my God! So हाँ once I even first entered I am Ahmedabad campus, हम्म, my entire body was shivering. Oh my God! हाँ I'm entering this college where I used to just see हाँ in internet. It was my phone wallpaper and everything. हाँ But I'm entering this place. It gives you a hit. Ki this is my home. हम्म And then it started becoming normal and it became like a home to me. हम्म और अब जब मैं जाती हूँ, जैसे मैं अभी गई थी रिक्रूटमेंट के लिए, इट फेल्ट कि यार मैं तो घर वापस आ गई हूँ। हाँ बहुत दिनों से मैंने घर नहीं गई थी, अब घर चली गई हूँ। हाँ इट जस्ट फेल्ट एज इफ मैं मुंबई जा रही हूँ, इतना ही आई एम अहमदाबाद जा रही हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट हिट नाउ।
राइट राइट एग्जैक्टली। और मुझे लगता है हमने मोस्ट ऑफ चीज़ें भी कवर कर ली हैं और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। और फिर मैं बोलूँगा अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको कि अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक दो चीज़ें मैं और पूछूंगा आपसे। वो एक चीज़ ये है अबाउट फीस, ये डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि फीस का Hmm. सिनेरियो कैसा है वहाँ पे। Okay. हम्म So the current fee structure is 28 lakh rupees for हम्म PGP program for हम्म 2 years, हम्म which includes your education, your hostel, हम्म and other tuition activities, sports activities, and everything. आपको हम्म बहुत सारे resources भी मिलते हैं, हम्म which costs you actually more than 28 lakh rupees. वो तो आपको resources free में बांटे जा रहे हैं आपको 2 साल के लिए as a ओके student. Now, the best thing about getting into a top B school is like an Ahmedabad, Bangalore, Calcutta. हम्म आपको जैसे ही ऑफर लेटर आता है आपको वैसे ही बहुत सारी बैंक्स के कॉल आ जाते हैं ओके कि we are providing you a loan at a very nice price. Like my हम्म loan is at 6.7% fixed. हम्म Okay. हम्म And this is only on my offer letter. There is no mortgage हम्म or there is not even a co-borrower. So if I'm not able to repay the loan, हम्म मेरे मॉम डैड के पीछे, मेरे भाई के पीछे कोई नहीं आने वाला है. इट इज ओके ओनली माई हम्म रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक द लोन, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग ऑफ गेटिंग इन टू दिस. तो आपका पूरा फाइनेंसिस पार्ट है, यू कैन जस्ट कीप इट असाइड, यू जस्ट हैव टू गेट द एडमिशन. हम्म बाकी आपके लिए सब चीजें वो नॉर्मल क्लियर कर लेता है. हम्म ऑल्सो जस्ट एडिंग, हम्म अगर आप समझो कि यू माइट हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन योर होम और वट एवर इट इज, हम्म और इवन इफ यू डू नॉट हैव, हम्म bank provides you 10,000 per month as an expenses that you can avail. Okay, it's not compulsory to avail. You या can avail if you want हम्म for your other expenses that you have, like your food, laundry, or anything else. राइट लॉन्ड्री के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है कैंपस में, बट यू कैन इफ यू स्टिल वांट टू गो आउटसाइड. राइट राइट या तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है बैंक कवर करिए. आपके हम्म इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बैंक आपको लोन दे रही है. हम्म तो आपके किसी भी चीज आपकी अटकने नहीं वाली है वंस यू गेट इनटू दीज टॉप बी स्कूल्स. राइट 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 एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली आप जब इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में आ जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ों के लिए वरी करना ही नहीं है। तो इस जिस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस टाइम भी ये मत सोचिए, जब हो जाएगा तब एवरीथिंग विल बी फाइन एट द एंड। ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द पैकेजेस। IIM अहमदाबाद की मैं बात करूं तो क्या वहाँ पे एनुअल पैकेज होते हैं बेसिकली ऑन एन एवरेज। So Ahmedabad, and I think there are 4 more colleges which हम्म do report हम्म their placements हम्म very in a very transparent manner. It's audited हाँ, on official site. आपको IIM Ahmedabad की वेबसाइट में भी मिल जाएगा. But the हम्म current हम्म figures around is हम्म average 28 to 30 lakh for an Indian company if you're based out of India. हम्म, And if you're based out of foreign, you get around 58 to 60 lakhs. There are also people with 1 crore, 2 crores, या obviously. But depending, the range is very wide. हम्म And you also get an option to sit for whichever company you want to sit. You have हम्म multiple offer. I think if I हम्म have to say, IIM Ahmedabad placement is hands down the best placement in the entire India. If you say, मतलब एग्जैक्टली इतनी अच्छी पॉलिसी, स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसी हम्म किसी और कॉलेज में नहीं है. आई कैन रिजेक्ट द हम्म बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज एंड आई कैन गो एनीवेयर. हम्म I can have multiple offers. I can play around with so many things हम्म in IIM Ahmedabad placement. I think that's a very big discussion. You'll come to know once you come to IIM Ahmedabad हम्म specifically. हम्म But I think it's hands down the best placement policy, हम्म student friendly हम्म for as compared to anyone else. ओके। तो आई थिंक हमने सब कुछ कवर कर लिया है एट द एंड। और जो कहानी Yes. टू टू स्टेट से स्टार्ट हुई थी और IIM अहमदाबाद की रिक्रूटमेंट में जाके पहुंची है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आई एम सो थैंकफुल टू यू, आपने टाइम दिया। और मैं अपने स्टूडेंट्स को या अपने जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं जो वो आने वाले टाइम में अहमदाबाद का या किसी भी इंस्टीट्यूट का इंटरव्यू देंगे, उनसे मैं बोलना चाहूंगा अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहता है तो यू कैन पिंग दिस डाउट इन आवर कमेंट सेक्शन, वी विल रिप्लाई फॉर श्योर। So again, thank you so much, Isa, for giving your time. Yes. Okay. And all the best, everyone, for your future endeavors. And I Mm. hope you get whatever you wish for and dream for. Yeah. And stay happy. Yeah. Okay.